Great. So over to you, Ms. Rajalakshmi. All the best to all the contestants. Hello, I'm Rajalakshmi and I'm from Bangalore. I'm a storyteller. There once lived a donkey in a tiny forest. This donkey always felt he was someone else. He wanted to be someone else. If I were to be a cheetah, I would be the fastest. If I were to be a deer, I would run all day long. If I were to be a giraffe, I could look over the trees. And he said, oh, I am a donkey. One fine day, has kept walking, munching some grass around. He could see there was a lion's skin on the ground. Went very nearby, pulled up head. Then he went to the other side and he saw the claws intact. Oh, yes, the nails. Then all of a sudden, he got an idea. He said, let me pick this up and wear on me. I'm going to scare everybody in the forest for the next few days. He put on the head and then put his front legs, then put his hind legs, and then started walking. As he started walking, he felt said, I am a powerful lion. All the animals heard this. They said, hey, run away. There's a lion somewhere here. There's a lion somewhere here. Run away. So all the animals ran back. Hid in the bushes here and there, everybody. Then all along, the next day, the donkey again put on a lion's claw and said, the rabbit, who's known for his intelligence, heard the lion, went around the bushes, hid himself, and watched for a while. After some time, then he said, as the lion was walking, kept watching. The donkey inside was tired for some time. Then he said, I need some rest. He took off his head and stood there. The rabbit, who was behind the bushes, saw this. What is this? This is a silly donkey. Yeah, come on, guys, all of you, come on, please, all of you, please, come on, all of you. I want to show you something. You know what? Just look at this creature. Balu said, oh. He laughed, Balu laughed. And the rabbit said, you cannot fool a silly donkey. You were just a donkey, silly one. You thought you could be a lion. Rabbit kept laughing. All the animals stood there and watched. Hey, such a fool. What is this? Oh, Donkey felt very bad. He stood there and said, what is happening? Why did I do this? I should have been myself. And if I was so, why did I open my mouth? He opened mouth and said, oh, now the donkey felt very insulted. He just stood there and all the animals kept laughing. And then he just passed on, walked over and felt. Then he realized next time he should never act to be someone else. He should be all by himself. Yes. Thank you. Well, thank you so much. We move on to our next contestant. Our next contestant is Miss Manjari. Miss Manjari, are you ready? Yes, Your time is 4 minutes. Yes, ma'am.
तो मेरा नाम मंजरी सिंह है। मैं सनबीम स्कूल लहरतारा में हिंदी की अध्यापिका हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ मैं। तो मैं भी आज आप लोगों के लिए जंगल की कहानी यानी कि पंचतंत्र की एक कथा लेकर आई हूँ। पंचतंत्र की कहानियां हमेशा हमारे जीवन को एक लक्ष्य देती हैं, हमारे जीवन को कुछ सिखाती हैं। तो कहानी है हमारे पास एक हंसमुख नाम के खरगोश की। आप देख रहे हैं, ये हंसमुख नाम का जो खरगोश है, ये जंगल में सारे जानवरों को प्यार करता था और वो उनको, छोटे छोटे बच्चों को गाना सिखाता था। प्रेम से हमको जीने दो, जीने दो, जीने दो, प्रेम से हमको जीने दो, जख्मों को सीने दो। लेकिन उस पूरे जंगल में आतंक था एक बूढ़े बूढ़े भयानक शेर का। और ये जो बूढ़ा भयानक शेर है, वो सारे जंगल के लोगों को डराता रहता था और बहुत डराता, इतना डराता कि सबके सब जानवर भागते थे, उसके पास आना नहीं चाहते थे उससे। मतलब पूरे जंगल में इस शेर का, इस जंगल के राजा का आतंक था। ये सबको कहता, मैं मार डालूंगा सबको, खा जाऊंगा। जंगल में है बाजू में है ताकत जिसकी, जंगल में हुकूमत उसकी, सब बकवास है, मैं बूढ़ा हूं तो क्या, सबको खा जाऊंगा। अब जंगल के सारे जानवरों ने सोचा कि इस शेर से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब हाथी, जो जंगल के बड़े से जानवर हैं, वो आए। उन्होंने सभी जानवरों के साथ मिलकर एक सभा को संबोधित किया। देखो जानवरों, अगर हम युक्ति से काम लेंगे तो बुद्धि लगाकर हम इस बड़े जानवर को भगा सकेंगे या इसको हटा सकेंगे। तुरंत खरगोश ने कहा, मुझे मौका दे, मैं कुछ कहना चाहता हूं। और खरगोश जो है, उसने कहा कि चलो जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं, उससे जाके कहेंगे कि राजा, रोज हम में से कोई एक आपके पास आहार बनने आ जाएगा। सभी के सभी जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे। जंगल के राजा शेर के पास जाके उन्होंने कहा, हुजूर, हम रोज एक आपके पास भोजन बनने आएंगे, आप पूरे जंगल में दौड़िएगा मत और किसी भी जानवर को घायल मत कीजिएगा। तो जंगल के राजा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात में कुछ दम है। ठीक है, कल का भोजन बनने कौन आ रहा है? सबने सोचा, अब कल का भोजन बनने कौन जाएगा? इस हंसमुख खरगोश ने, जो सबको प्यार का पाठ पढ़ाता है, उसने कहा, आप लोग सब लोग चुपचाप रहिए, कल का भोजन बनने मैं ही जाऊंगा। और पूरे रास्ते ये जो हंसमुख खरगोश है, वो धीरे 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 चलता चलता शेर की गुफा के पास पहुंचा। रास्ते में उसने एक बड़ा सा कुआं देखा, जिस कुएं की दीवार पे, कुएं की दीवार को हम कहते हैं जगत, जगत माने दुनिया और जगत माने कुएं की दीवार भी। उस कुएं की दीवार पर खड़ा होकर उसने ऐसे नीचे पानी की तरफ देखा तो उसकी परछाई दिखाई दी, यानी कि प्रतिबिंब दिखाई दिया। और उस प्रतिबिंब को देखते ही उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने सोचा कि चलो अब शेर को सबक सिखाया जाए। और धीरे धीरे चलते चलते वो शेर के पास पहुंचा। शेर ने कहा, मैं भूखा हूं, कहाँ था तू अब तक? बोल, मुझे गुस्सा आ रहा है, कहाँ था तू अब तक? खरगोश ने कहा, हुजूर हुजूर हुजूर, मेरी इतनी सी इल्तिजा है, इन छोटी छोटी बातों पे काहे का गुस्सा है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे रास्ते में आपके जैसा ही एक शेर मिला। अच्छा, मेरे जैसा शेर? हाँ महाराज, आपके जैसा शेर मिला, चलो मुझे दिखाओ। और आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे शेर जी चल पड़े। जाते 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 खरगोश उस शेर को ले गया उस कुएं के पास और कुएं पे खड़े होकर कहा, देखिए महाराज, बिल्कुल आपके जैसा शेर। शेर ने कुएं के अंदर ऐसे झांका तो देखा कि सचमुच एक शेर दिखाई दे रहा है। उसने कहा, ओ शेर! अंदर से आवाज आई, ओ शेर! उसने कहा, मैं अभी आता हूं। अंदर से आवाज आई क्योंकि उसका प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा था और उसकी आवाज की प्रतिध्वनि
यानी कि बार बार जो सुनाई देती है ध्वनि वो सुनाई दे रही थी। और उसने जोर से छलांग लगाई, पानी में छपा। अरे ये तो पानी है, मुझे बचाओ 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 बचाओ, शेर अंदर से चिल्लाने लगा। और सारे जानवरों ने घेरा बनाकर उस पूरे कुएं के पास आकर खड़े हो गए, सारे के सारे जानवर। और उन्होंने कहा कि चलो, इस छोटे से जानवर ने ऐसी युक्ति लगाई कि हमें इस बड़े जानवर के आतंक से मुक्ति मिली। तो मेरी इस कहानी का इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम छोटे हैं या बड़े हैं, पर हमें हर चीज के लिए अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। और जब हम सोच को बड़ा रखते हैं तो हम बड़ी बड़ी चीजों का सामना कर पाते हैं। तो इस प्यारी सी कहानी से हमें इतनी अच्छी सीख मिली। और उसके बाद खरगोश पूरे जंगल में बड़े प्यार के साथ, प्रेम से हमको जीने दो जीने दो जीने दो, प्रेम से हमको जीने दो, जख्मों को सीने दो। इसी प्यारे से गाने के साथ अपने प्यारे दोस्तों के साथ सुख की लंबी जिंदगी जीने लगे। धन्यवाद। Thank you, Manjari ji. We move on to our next contestant. Our next contestant is Miss Ulbumi. Are you present? We move on to our next contestant, Miss Satendra Kaur. Miss Satendra Kaur, are you there? Please switch on your video. Miss Satendra Kaur, are you present? Hello, yes. Hello. Good Yes. afternoon. Good afternoon. Sorry, there were guests at my place. So Okay. myself, Satinder Kaur Bhalla, I'm a theatre coach and I'm a storyteller also. And working with children is my passion. So मेरी कहानी है ईद का, राइटर है प्रेमचंद। ईद का त्योहार था, रमजान खत्म हो गए थे और आज ईद का त्योहार। अमीना हामिद की दादी है और हामिद 7 साल का छोटा दुबला पतला बच्चा है। और हामिद के जो माता पिता हैं वो बहुत जल्दी चल बसे थे, तो हामिद अपनी दादी के साथ रहता था। हालांकि अमीना बहुत अमीर नहीं थी, फिर भी वो अपने पोते हामिद का बहुत प्यार से ध्यान रखती थी। आज ईद है तो ईदगाह के लिए एक काफिला, बच्चों का काफिला ईदगाह के लिए चलने वाला था। अमीना थोड़ी चिंतित थी क्योंकि हामिद पहली बार अपने घर से जा रहा था। हामिद ने कहा अमीना को, माँ, दादी तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। पर अमीना चिंतित थी कि नन्ही सी जान, दूर का रास्ता, कहीं चोट ना लग जाए। अमीना ने हामिद के लिए कुल 30 रुपए जमा किए थे इस त्योहार के। काफिला रवाना हुआ, ईदगाह पहुंचे। ऊपर घने पेड़ की छांव थी और नीचे पक्का फर्श, जहां लोग एक साथ सिर झुकाकर सजदा करते थे, एक साथ फिर उठते थे, एक साथ फिर सजदा करते थे और सब एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते थे। उसके बाद सब बच्चे मेले में बाहर आए। बाहर मिठाई वाला था, खिलौने थे। पहले बच्चे खिलौने की तरफ थे, किसी ने धोबी लिया, किसी ने किश्ती, तो किसी ने सैर। हामिद ने खिलौने देखे, पर हामिद ने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा। इसके साथ ही मिठाई की दुकान थी, वहां किसी बच्चे ने बर्फी खाई, तो किसी ने लड्डू, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने जलेबी। पर हामिद ने यहाँ पर भी कुछ नहीं लिया। फिर बच्चे चले, आपस में बातचीत कर रहे थे, अपने खिलौनों की चर्चा कर रहे थे। तभी साथ में हामिद ने एक लोहे की दुकान देखी। हालांकि यहाँ पर बच्चों के लिए खरीदने जैसा कुछ नहीं था। हामिद की नजर एक चिमटे पर पड़ी। हामिद ने उससे उसका भाव पूछा, भैया
इस चिमटे का क्या की क्या कीमत है? उसने कहा कि 40 रुपए। हामिद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, 30 लगाते हो? दुकानदार ने कहा, ठीक है, ले लो। हामिद ने खुशी खुशी 30 रुपए उसे अदा किए और चिमटा ले लिया। जब सब बच्चों ने देखा कि हामिद ये चिमटा लेकर आया है, तो ये कैसा पागल बच्चा है, तेरा खिलौना कैसा है, ये कोई खिलौना है? हामिद ने कहा कि तुम्हारे खिलौने तो मिट्टी के हैं, बाहर गिरेंगे चकनाचूर हो जाएंगे। मेरा खिलौना कितना मजबूत। वो सैनिक की तरह चिमटे को अपने कंधे पर तान चल रहा था। घर पहुंचे, हामिद ने अमीना अमीना ने हामिद से पूछा, क्या खाया? तो हामिद ने खुशी खुशी वो चिमटा उसके सामने रख दिया। अमीना ने चिंतित होकर पूछा, कितने का है? हामिद ने कहा, 30 रुपए का। अमीना को बहुत गुस्सा आया। नन्ही सी जान, सुबह का गया, ना कुछ खाया ना पिया, और एक चिमटा उठाकर ले आया। उसने कहा, दादी, जब तुम रोटी सेकती हो तो तुम्हारे हाथ जल जाते। अमीना अमीना सोच में पड़ गई कि ईदगाह अपने दोस्तों के साथ जाने पर भी इस नन्हे हामिद को अपनी दादी, बूढ़ी दादी का ख्याल था। नन्हा हामिद अमीना की गोद में अमीना ने हामिद को अपनी गोद में लिया और नन्हा हामिद सिमटे जा रहा था, और अमीना की आंखों से केवल आंसू निकल रहे। थैंक Thank you, Satinder ji. यू। Thank you so much. We move on to our next contestant, Miss Priyanka. Miss Priyanka, are you there? Miss Priyanka, please unmute yourself. Hello everyone, myself Priyanka. I am from SSMI school. So my story begins somewhere at some time in a jungle where there was a baby hippo. So he was very excited. You know why? Because it was the beginning of summers. And this was the first time he will go into the river. So he was very excited. He asked his mama, Mama, can I go into the river? Please, Mama. So Mama said, okay, you can go, but make sure when I will ask you to come back, you have to come back. Otherwise, you will get a cold. Achoo. So hippo went into the river. Okay, I want everyone to act as a hippo who is going into the water for the first time. Deborah, ma'am, yeah, thank you so much. So hippo is going into the water. Yes, so when he enters into the water, he splashed here and there, he waddled and paddled, he bubbled up, bubbled down, tup. So hippo was enjoying his ride in the pool for the first time, and 14 hours passed. His mama came angrily and said, hippo, come out of the water. So hippo said, na, I won't get a cold. Achoo! So baby hippo didn't came out of the water, and he kept on splashing and waddling and paddling, splashing and waddling. So now mother went to the Crocky uncle for the help. Who is Crocky uncle? Yes, a crocodile, a snappy snap. So she asked Crocky uncle to make his child out of the water because it's been 14 hours. So Crocky uncle brushed his teeth and he went in the river to make the baby out of the water. And when crocodile moved into the river, he said, hippo, get out of the water, hippo. You will get a cold. Hippo said, na, I won't get a cold. Achoo! So this time also baby hippo didn't came out of the water. Mother got very angry. So she kept on running in the jungle.
And now she saw the king of the jungle, lion. So she requested lion, that lion, please make my baby out of the water. He's in the water from almost 24 hours. So lion brushed his teeth, zzz, and lion went near the river to get the baby hippo out of the water. He said, hippo, 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 get out of the water, baby hippo. You will get a cold, a chill. Hippo said, na na, na 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 na, I won't get a cold, a chill. So this time also, baby hippo enjoying and splashing here and there, whirling and paddling and bubbling up, bubbling down. And now mother got very angry. She started crying. She cried, hippo, come out of the water, hippo. You will get a cold, hippo. Come out. Come out. It's been more than 24 hours. So hippo said, what do you think hippo would have said? He said, na 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 na, achoo, achoo. Mama, I got cold, mama, achoo. And this way, hippo get out of the water and mother hugged him. So this is the end of the story, which shows always love your mama. Mothers are the beautiful, creation of the nature. Love her, respect her. And my story also goes to those mamas who doesn't push their child or yank at them and allow them to take their own decisions of life. And students, always, love the creation of God, respect them, visit zoo, feed animals, and do not harm animals. Thank you. Thank you so much. We move on to our next contestant. Our next contestant is Ms. Juhi. Ms. Juhi, can you please unmute yourself? Yes. Good evening, everyone. Myself, Juhi Jha, and I am from SSMI, and I'm a primary teacher. अरे आई रे आई रे आई रे आई कहानी वाली आई, अरे कौन आया कहानी वाली, आज क्या लाई कहानी लाई, अरे आई रे आई रे आई रे आई। हाँ तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि कौन आया। अब तो आप मुझे पहचान गए होंगे ना, बताइए कि कौन आया। हाँ बिल्कुल सही, मैं आई हूँ कहानी वाली। मैं कहानीपुर से आई हूँ और आपके लिए ढेरों कहानी लाई हूँ। तो क्या आप कोई कहानी सुनना चाहेंगे? हाँ वेल, आज मैं आपको मेरे एक दोस्त से मिलवाती हूँ। मेरा बहुत ही चहेता दोस्त है और मेरा दोस्त है चुनमुन। ये है चुनमुन। चुनमुन रोज अपने दादाजी के साथ शाम को पार्क में सैर करने जाता था। चुनमुन को पार्क जाना बहुत पसंद था। पता है क्यों? क्योंकि वहां लंबे, छोटे और बहुत सारे पेड़ थे। बहुत रंग बिरंगे फूल थे और उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती थी। चुनमुन का दिल एकदम खुश हो जाता था जब भी वो पार्क जाता था। एक दिन चुनमुन पार्क जा रहा था दादाजी के साथ और उसने क्या देखा? उसने देखा एक नन्हा पौधा। चुनमुन नन्हे पौधे के पास गया और जाकर बोला, अरे नन्हे पौधे, तुम्हें तो मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा, तुम यहाँ कब आए? तो नन्हे पौधे ने कहा, हाँ चुनमुन, पहले मैं मिट्टी के नीचे था, अब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो अब मैं मिट्टी के ऊपर आ गया। तो चुनमुन नन्हे पौधे के पास गया, उसकी पत्तियों को छूकर कहा, अरे वाह नन्हे पौधे, तुम्हारी पत्तियां तो बहुत अच्छी हैं, बहुत मुलायम भी हैं। तो नन्हा पौधा बोला, हाँ। वो बड़ा खुश हुआ अपनी प्रशंसा सुनकर, पर फिर उदास होकर बोला, हाँ पर कुछ शरारती बच्चे हैं ना, वो मेरी पत्तियां तोड़ देते हैं और जब वो मेरी पत्ती तोड़ते हैं मुझे बहुत दर्द होता है। तो चुनमुन ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? अब तुम मेरे दोस्त बन जाओ ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊं
और मैं किसी को भी तुम्हारी पत्तियां नहीं तोड़ने दूंगा। नन्हा पौधा बहुत खुश हुआ। क्या दोस्त, तुम मेरे दोस्त बनोगे? चुनमुन ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। तभी चुनमुन को याद आया, उसने नन्हे पौधे से पूछा, अरे नन्हे पौधे, जैसे मैं अपने दादाजी के साथ रोज शाम को सैर करने जाता हूँ, तुम्हारे भी तो दादाजी होंगे? तो पौधे ने कहा, हाँ हाँ, मेरे भी दादाजी थे ना, बहुत बड़े से पेड़ थे, उन पर बहुत सारे फल लगते थे, मीठे मीठे। सारे लोग आते थे और बच्चे तो बहुत सारे फल खाते थे। उनका पेड़ इतना विशाल था कि उसकी छांव में सब लोग आराम करते थे। चुनमुन ने कहा, अच्छा, जैसे मैं अपने दादाजी की गोद में आराम करता हूँ वैसे ही क्या? तो पौधे ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही। लेकिन एक दिन कुछ लोग आए, अपने साथ कुल्हाड़ी लाए और उन्होंने मेरे दादाजी को मार दिया। मेरे दादाजी बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें मीठे फल देता हूँ, तुम मेरी छांव में आराम करते हो, मुझे मत मारो। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने कुल्हाड़ी ली और दादाजी को मार दिया। नन्हा पौधा बहुत दुखी हुआ। चुनमुन को सुनकर बहुत बुरा लगा। चुनमुन ने कहा, अच्छा नन्हे पौधे, अब तुम दुखी मत हो, अब तुम मेरे दोस्त हो ना, तो अब मैं ये जरूर तुमसे वादा करता हूँ कि अब से मैं या कोई भी ना तुम्हें ना तुम्हारे परिवार को तंग करेगा। अब से कोई भी तुम्हें नहीं काटेगा। मैं सब लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा कि तुम हमारे लिए कितने जरूरी हो और क्यों हो। तुम्हें हमसे क्या क्या, तुम हमारे लिए क्या क्या करते हो। हम तुम्हारे मीठे फल खाते हैं, तुम हमें ऑक्सीजन देते हो जिससे हम सांस ले पाते हैं। और मैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को सब जगह पर जाऊंगा और गाना गा के सुनाऊंगा। नन्हा पौधा बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद जब चुनमुन वापस आया, उसने देखा, अरे ये क्या, नन्हा पौधा तो और बड़ा हो गया, अब उसमें भी फल आने लगे। नन्हे पौधे ने कहा, अरे चुनमुन, खाओगे क्या? तो चुनमुन ने कहा, हाँ बिल्कुल। और उसने वो मीठे मीठे फल खाए। उसके बाद से चुनमुन हमेशा ये देखता था कि कोई उसे तंग ना करे। दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। पार्क में और नए पौधे लगे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। तो दोस्तों, आज आपको भी पता चला कि पौधे हमारे लिए कितने जरूरी हैं। तो क्या सिर्फ आप अपने घर में ही पौधे लगाएंगे, बाहर नहीं? आप भी तो पार्क जाते हैं। क्यों मैम, आप पार्क नहीं जाते? आप भी तो जाते हैं। तो क्या सिर्फ सैर सपाटा करके आ जाते हैं? नहीं ना। अब से अगली बार जब पार्क जाए तो हाँ, एक छोटा नन्हा पौधा जरूर लगाएं, ताकि आप भी जब वो बड़ा हो जाए तो क्या खाएं? बताइए बताइए, क्या खाएं? बिल्कुल सही, मीठे मीठे फल खाएं। धन्यवाद। Thank you. Thank you. We move on to our next contestant. That is Ms. Sushila Bajan. Ms. Sushila, are you present? नमस्कार, मेरा नाम सुशीला बघेल है और मैं नई दिल्ली पंजाबी बाग में स्थित स्वामी शिवानंद स्मारक विद्यालय में सन 2009 से एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके लिए बड़ी ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है पिग्गी की उड़ान, जिसकी लेखिका है शीला गांधी जी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बड़ा ही सुहाना दिन था। धूप खिली हुई थी और मंद मंद हवा चल रही थी। ठीक उसी समय एक नन्हे पिग्गी का जन्म हुआ। वहीं पास ही एक आम का पेड़ था, जिस पर था एक घोंसला। उस घोंसले में रखा अंडा भी ठीक उसी समय फूटा और उसमें से बाहर आया एक नन्हा चिड़िया का बच्चा। उस चिड़िया के बच्चे का नाम रखा गया चोचो चिड़िया। अब
चूचू चिड़िया धीरे धीरे उड़ना सीख गई और नन्हा पिग्गी चलना और दौड़ना सीख गया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन चूचू चिड़िया को हवा में कलाबाजी करते देख पिग्गी ने सोचा कि मैं ऐसे क्यों नहीं उड़ पाता। पिग्गी माँ के पास पहुंचा और माँ से पूछा, माँ मैं चूचू चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ पाता। माँ ने कहा, बेटा अभी मुझे बहुत काम है, मैं बाद में बताऊंगी। अब पिग्गी चूचू चिड़िया के पास जा पहुंचा और उससे कहा, चूचू चिड़िया क्या तुम मुझे उड़ना सिखा दोगी। चिड़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें उड़ना जरूर सिखाऊंगी। और फिर चिड़िया ने कहा, तुम कल सुबह आ जाना। अब सुनकर ये मुस्काया पिग्गी, मन ही मन हर्षाया पिग्गी, कल है मेरी पहली उड़ान, मैं भी छू लूंगा आसमान। अगले दिन सुबह होते ही चूचू चिड़िया और पिग्गी जा पहुंचे एक ऊंची टूटी दीवार पर। और फिर चूचू चिड़िया ने कहा, पिग्गी देखो, जैसे मैंने अपने पंखों को फैलाया है वैसे ही तुम्हें भी अपने पंखों को फैलाना है, इन्हें हिलाना है और उड़ जाना है। पिग्गी ने कहा, ठीक है। और फिर पिग्गी उड़ने को तैयार हो गया। अरे मैं कैसे उड़ूं, मेरे तो पंख ही नहीं है। अरे हाँ पिग्गी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुम्हारे तो पंख ही नहीं है। अब मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, तुम्हारे ये बड़े बड़े कान तो हैं, तुम इनको हिलाओ और उड़ जाओ। पिग्गी ने ठीक वैसा ही किया। पिग्गी ने अपने बड़े बड़े कानों को हिलाया और ऊंची भरी उड़ान। तभी अचानक गिरा धड़ाम। मुझे चोट लग गई। चूचू चिड़िया, तुमने तो कहा था मैं उड़ जाऊंगा, पर मैं तो नीचे गिर गया। मुझे नहीं पता था दोस्त कि तुम गिर जाओगे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है। अब क्योंकि पिग्गी को बहुत चोट लगी थी तो चूचू चिड़िया ने उसकी मरहम पट्टी की। चूचू चिड़िया जड़ी बूटी वाले पत्ते लेकर आई और पिग्गी को लगाए, जिससे उसका दर्द ठीक हो गया। अब पिग्गी और चूचू चिड़िया दोनों घर की ओर निकल पड़े। वहां पर पिग्गी की माँ इंतजार कर रही थी और जब उन्होंने पिग्गी की ये हालत देखी तो उन्होंने पूछा, अरे पिग्गी ये क्या हुआ। पिग्गी ने कहा, जो भी वहां हुआ था पिग्गी ने वो सारी बात माँ को बतलाई। फिर माँ ने कहा, अरे बेटा तुम एक जानवर हो, तुम कैसे उड़ सकते हो। जानवर नहीं उड़ते, पक्षी उड़ सकते हैं, पक्षियों के पंख होते हैं, पर तुम्हारे तो पंख नहीं है, तुम कैसे उड़ सकते हो। हम सभी को प्रकृति ने हमारे अनुकूल बनाया है और हम जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। आ गया समझ पिग्गी को, जान गया वह भी सच को, नहीं कभी उड़ पाऊंगा, कीचड़ में छलांग लगाऊंगा, यही है मेरे लिए मजेदार। पिग्गी चू चू कूद पड़े कीचड़ में, छप 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 छपाक छपाक। धन्यवाद। Thank you. We move on to the next contestant. Our next contestant is Miss Suman Sharma. Miss Suman Sharma, are you there? Yes, ma'am. Okay, please just switch on wait. your camera and over to you.
Just wait. Yes, ma'am. मेरा नाम सुमन है। मैं SSMI पंजाबी बाग से बाल बाड़ी की अध्यापिका हूँ और वहां पर हम बच्चों को कहानियां सुनाकर उनको मनोरंजक के साथ साथ विषय ज्ञान भी देते हैं। तो आज की मेरी कहानी कक्षा 2 की उड़ान पुस्तक से है और जिसका शीर्षक है, आप शीर्षक खुद ही समझ जाएंगे। जस्ट आई स्टार्ट माई स्टोरी। ला 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 ला। ये है मीना। मीना के घर के बाहर 2 पेड़ थे, एक आम का और एक नीम का। नीम का पेड़ बहुत ऊंचा था। ऊंचा होने के कारण इसे बड़ा घमंड था और घमंड के कारण ये आम के पेड़ से कभी बात भी नहीं करता था। एक दिन रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आती है और कहती है, नीम भाई, क्या मैं तुम्हारी एक डाल पर अपना घोंसला बना लूं? नीम अकड़ते हुए कहता है, जा जा कहीं और अपना छत्ता बना। रानी मधुमक्खी फिर से विनती करती है, नीम भाई, तुम्हारी ऊंची डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। नीम को गुस्सा आता है और कहता है, कहा ना तुझे, जा कहीं और जाकर अपना छत्ता बना। मुझे तेरी भिन भिन की आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब रानी मधुमक्खी उदास हो जाती है और आम के पेड़ के पास जाती है और कहती है, आम भाई, क्या मैं तुम्हारी एक डाल पर अपना छत्ता बना लूं? आम खुशी खुशी बोलता है, हाँ बहन, बना लो। अब रानी मधुमक्खी की मजदूर मक्खियां दूर दूर से फूलों का रस लाकर आम के पेड़ पर अपना छत्ता बना देती हैं। अब बहुत दिनों के बाद वहां पर 3 लकड़हारे आते हैं और एक लकड़हारा कहता है, देखो नीम का तना कितना मोटा हो गया है, कल हम इसे काट लेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। दूसरा लकड़हारा कहता है, देखो देखो, आम की भी कुछ टहनियां काट लेंगे। तीसरा लकड़हारा कहता है, नहीं नहीं, देखो आम के पेड़ पर तो छत्ता लगा है, इसे नहीं काटेंगे, सारी मधुमक्खियां हमें काट खाएंगी। और तीनों चले जाते हैं। अब उन सबकी बातें सुनकर नीम का पेड़ घबरा जाता है और रानी मधुमक्खी से कहता है, रानी मधुमक्खी, एक छत्ता मेरी डाल पर भी बना लो। रानी मधुमक्खी कहती है, नहीं नहीं भाई, अब मुझे कोई छत्ता नहीं बनाना, मैंने तो आम की डाल पर अपना छत्ता बना लिया है। अगले दिन तीनों लकड़हारे आते हैं और जैसे ही एक लकड़हारा आम के तने पर अपनी कुल्हाड़ी चलाता है, जोर से चिल्ला उठता है, आ काट लिया काट लिया। और तीनों लकड़हारे देखते हैं कि उनके पीछे तो मधुमक्खियां पड़ गई हैं और तीनों अपनी जान बचाते हुए भाग उठते हैं। अब रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आती है और कहती है, नीम भाई, धन्यवाद बोलो, उनके कहने से ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। और हाँ, ध्यान रखो, हम सबको मिलजुल कर रहना है, समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करनी है। थैंक यू। Thank you. We move on to our next contestant. Our next contestant and our last contestant for our day is Miss Champa Chakravarti. Miss Champa, are you there? Yes, ma'am. I hope I'm audible to you. Yes, you're quite audible. Okay. So good evening and Jai Hind, everyone. I am Champa Chakravarti from Sunbeam School, Lehertara, Varanasi. By profession, I am an educator, but by heart, I'm a learner. So I'm here to learn from you all.
So without delay, let's start the story. Come, listen, everybody. Just for you, I have a story. Come, listen, everybody. Just for you, I have a story. Sometimes nice, sometimes scary. Sometimes nice, sometimes scary. Just for you, I have a story. Come. So once upon a time, not twice, not thrice, only once upon a time, there was a jungle, a huge jungle. And there lived, yes, many animals. The scary one, the little one. And there also lived an animal which looked like somewhere a dog. And he is very cunning, very, very, very cunning. Can you guess the animal? Yes, it's a fox. And the fox was very hungry. So he told to himself, let me get a good meal for me. So he went searching for food. Today I'm going to get me a yummy meal. Today I'm going to get me a yummy meal. And this hungry, cunning fox went far and wide and far and wide, but he couldn't get an animal. He was so hungry, and now he was tired as well. So settled down under the tree, and he was about to fall asleep, and suddenly he saw a small little animal coming out from the water, slowly. No, it's not a snail. It was a tortoise. A tortoise who was very bored. He said to himself that the water is too cool. Let me get some warm. Let me get into the sun. He was coming out slowly and slowly, singing, let me warm in the sun. Let me warm in the sun. And he came out from the water and he was just about to settle down, and suddenly, who was there? Yes, the cunning, hungry fox. He grabbed the tortoise and he was about to eat the tortoise. Suddenly, a sound came. Mr. Fox, Mr. Fox. Yes, what? What now? You won't be able to eat me. Why? Why can't I eat you? Can't you see I'm so hungry? I am going to eat you. No. You did not understand. You cannot eat me. Can you make out my shell is so hard? How can you eat me? I can eat you like this only. No, Mr. Fox, you cannot eat me. My shell is too hard for you. So if you can send me in the water, I will soak the water and I'll become soft, and then I will come to you and you can eat me. This cunning fox, as he was cunning, he thought for a moment, I think you are right. I won't be able to eat you like this. But make it sure that as soon as you become soft, you will come out. This tortoise said, yes, I will come out. And then the fox stopped the tortoise in the water, and the tortoise swam away, and this hungry fox was hungry all over again. Thank you. Thank you. We've come to the end of our story ka Pichara today.
And thank you to all the contestants who participated. I would also like to say a thanks to all the judges who removed special time from their busy schedules to see all the stories, to hear our beautiful storytellers narrate them. And I'm sure all of you all have enjoyed too. And I'm sure there have been a lot of takeaways for everybody. Contestants, please note, all the results shall be announced tomorrow to you by the ECDF team. I wish you a good evening on behalf of everybody. And at this point, I would like to invite Dr. Vasavi to say a few words to everybody. Dr. Vasavi, over to you. Hi everyone. And it was a wonderful panel session, number one, followed by such lovely stories that all our contestants narrated today. And I believe it's going to be a very tough job for our judges to actually choose a winner out of all these lovely storytellers. And I wish you all the best for the future, because I guess I believe that stories are the most potent tools for little ones to understand, to know, to get, to understand life situations in the form of story problem solving. We all discussed this today already. And storytellers are wonderful human beings who, bring fantasy into the real world, who teach children through their lovely, modulations, through the lovely ideas. And all the best. And the results will be declared tomorrow. As far as the timings are concerned, I request all the judges and the panelists to visit the LinkedIn chat where we have noted the timings, and then we can, all share the score sheet there and come back tomorrow with the results. Thank you so much. It was lovely to have you. And a very good bye from ECDF. And we are going to come back with yet another event very soon. And stay tuned, stay connected with us. Thank you. Thank you so much. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mom. Thank you.